My name is Anshu, and currently I'm working as a computer scientist in a Belzaba Softwares. And I'm here to present my startup Code2Crack, and would like to tell you about how to crack technical interviews. So it's a portable one, right? Let's put it here. Yes, right. Okay, so before I start, questions. Am I audible? Okay, so here are some questions. First, tell me how many of you are interested in coding? Okay, that's a pretty good number. So, and how many of you think about placements, job salary, your dream companies? Great. So, आप में से किसी ने अपनी ड्रीम कंपनी सेट करी है अभी तक कुछ? Google, Microsoft, anyone? Microsoft. Okay. So, good to know. At least you have decided. In fact, अगर नहीं decide करें, time late हो जाएंगे अगर नहीं करेंगे अभी तो. So, यहाँ पे पूरी presentation में I have divided the companies into 3 categories based on how much salary they pay. So category A will be having those companies which pay salary greater than 10 lakhs per annum. So whenever I mention category A company, just keep these companies in mind, like Google, Microsoft, Amazon, Adobe and all. When I tell you about category B, that means companies with salary band from 5 lakhs per annum to 10 lakhs per annum, like Samsung, Oracle. And category C will be having 3 to 5, like TCS, HCL, Wipro, Infosys. So before telling you about process of cracking interviews, I will tell you why I started this. Being from the same university, I understand that there are multiple companies that do not visit our campus, like Microsoft, Google and all. So it's very difficult to get into those companies. In fact, clearing the initial screening round is very difficult. So keeping all those things in mind, I prepared this presentation. I hope this will be useful for you. So the process of cracking interviews. How does this thing start? Selecting dream companies. Actually ड्रीम कंपनीज डिपेंड्स ऑन वेरियस पैरामीटर्स. किसी के लिए जॉब प्रोफाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई सैलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी के लिए. समवन वुड लाइक टू प्रेफर लोकेशन एंड समवन प्रायोरिटाइज ब्रांड वैल्यू. सो ईच इंडिविजुअल हैज हिज ओन ड्रीम सेट ऑफ कंपनीज. सो इफ समवन टेल्स यू आई वुड लाइक टू क्रैक गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, दैट डजंट मीन यू शुड आल्सो टारगेट दोस कंपनीज. यू शुड हैव योर ओन ड्रीम सेट ऑफ कंपनीज. अगर आपको टारगेट ही नहीं पता होगा तो आप अप्रोच कैसे करेंगे? सो प्रिपेयर अ ग्रिड. Put some parameters like job location, salary they offer, what's the interview procedure, will you be able to crack them, what's the brand value, and prioritize them. Then you will be able to decide those companies. In this process, there are multiple steps. I will just brief you about each step and will give you details of some important steps like technical interview later. Then we come to the next step, collect company information. इसमें आपको कंपनीज क्या पूछती हैं, जॉब इंटरव्यूज उनका प्रोसीजर क्या है, किस प्रोडक्ट पे वो काम करती हैं, व्हाट टेक्नोलॉजीज दे यूज. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन कम्स हैंडी इन लेटर स्टेजेस. इनफैक्ट क्रिएटिंग योर रिज्यूमे, दिस पार्ट प्लेज अ बिग रोल. देन प्रोफाइल बिल्डिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वेरी बिग पार्ट. आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, बट एज ऑफ नाउ आई विल जस्ट टेल यू अ वेरी स्मॉल टिप that whatever information you have collected in the earlier step, now this step, that what companies they work on, what technologies they use. Example, Adobe जो है वो C++ और Java में वर्क करती है. तो अगर आपने 5 प्रोजेक्ट्स करे हैं, so put the C++ and Java projects up. That's a very good point. अगर only put those projects which the company will see. Highlight those. Example, a company works on web technologies. Then highlight the web technology part. I work on Ajax, in bold, italics. Just put these things in resume. So this part plays a very big role in all the parts coming up. And profile building is a very crucial part here. Then comes applying for opening. आपका रिज्यूमे तैयार हो गया, उसके बाद आप कैसे उन कंपनीज तक पहुंचेंगे? बहुत सारे तरीके हैं. डायरेक्टली वी कैन अप्लाई ऑन जॉब बोर्ड एंड ऑल, बट चांसेस बहुत कम रहते हैं कि वो हमारे रिज्यूमे सिलेक्ट करें. दे प्रेफर कॉलेजेस एंड ऑल. सो आई विल टेल यू हाउ टू गेट इनटू देयर डेटाबेस, द रिज्यूमे डेटाबेस. एज ऑफ नाउ देयर आर मल्टीपल वेज फॉर अप्लाइंग. डायरेक्टली यू कैन अप्लाई ऑन जॉब बोर्ड. आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं that they can refer you. You can create your own friends working there while LinkedIn or many multiple platforms and ask them to refer you.
एंड इफ नन ऑफ दीज वर्क्स आउट, जस्ट चेक उन कंपनीज की कोई क्विज या कॉन्टेस्ट होते हैं, अगर होते हैं तो डू पार्टिसिपेट इन देम एंड यस दे विल डेफिनेटली कॉल यू. देन कम्स इनिशियल स्क्रीनिंग. इनिशियल स्क्रीनिंग में सबसे जो कॉमन क्वेश्चन रहते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ. देन दे आस्क योर वीकनेस, स्ट्रेंथ्स, हॉबीज. एक्चुअली बहुत प्रिसाइज क्वेश्चन है. इनफैक्ट रिक्रूटमेंट एजेंसी ऑल्सो आस्क दिस क्वेश्चंस. सो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं. अगर आप एक दिन बैठे इसको डॉक्यूमेंट करेंगे तो उन क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हैं. सो व्हेन दे आस्क अबाउट वीकनेस, स्ट्रेंथ्स एंड एवरीथिंग, जस्ट बी प्रिसाइज, बी रियल, बी लेजिटिमेट. दैट व्हाट्स मैटर. एग्जांपल, जब मेरे से पूछा गया था तो मैंने कहा था आई एम वेरी मच हार्ड वर्किंग. सो बहुत प्रॉब्लम हुई थी मुझे इस आंसर को देने में, एंड आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम माय फर्स्ट कंपनी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आंसर. सो इट वाज HCL एक्चुअली. तो देन आई डिसाइडेड टू पुट दिस ऑल इन नोट्स. सो अगर कोई आपसे पूछे एग्जांपल आपकी वीकनेस क्या है, देन बी रियल. इनफैक्ट बी एज टेक्निकल एज पॉसिबल. हर एक आंसर में आपके जितने टेक्निकल होंगे आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी वो. जैसे अगर आपसे कोई पूछा आपकी वीकनेस क्या है तो आप बोल सकते हैं आई डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू डिटेल्स. इससे क्या होता है कि आई समटाइम्स able to execute my goals very fast, but sometimes I make careless mistakes. So you can mention these things, but be legitimate as I told you. Then comes technical interview. Technical interview is a big thing. मैं आपको इधर brief तो नहीं कर पाऊंगा, next slides में आपको मैं brief करूंगा इसके बारे में. Then managerial round, I will explain you this also, and negotiation and job offer. So basically मोटे मोटे तौर पे प्रोफाइल बिल्डिंग, टेक्निकल इंटरव्यू और मैनेजरियल राउंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका किसी कंपनी में सिलेक्शन होने में या रिजेक्ट होने में. सो प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत सारे स्टेप से बनता है. सबसे बहुत इसमें एक्चुअली मैंने इसको समराइज करके 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड करा है. फर्स्ट वन इज रिज्यूमे. आई विल गिव यू द रिज्यूमे टिप्स, बट एज ऑफ नाउ आई टोल्ड यू दैट your chronicle order in which you mention your projects, everything does matter. आपका रिज्यूमे सिर्फ 15 से 30 सेकंड लेता है आपका रिज्यूमे रिजेक्ट होने में या सिलेक्ट होने में. सो उस 15 to 30 सेकंड्स में आपको रिज्यूमे स्क्रीनर्स की आई को कैच करना है. यू शुड पुट दोज वर्ड्स सो दैट ही कैन मैच योर प्रोफाइल विद द रिक्वायरमेंट्स. आई विल एक्सप्लेन यू दिस रिज्यूमे पार्ट. देन कम्स सोशल प्रोफाइल. सोशल जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं. यहां पे सोशल से मेरा मतलब यह है कि इफ यू हैव अ प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, इट रिज्यूमे, suppose your resume gets shortlisted, then your recruiter will check your profile on Facebook, what exactly you do, what's your interest are, then they check your profile on LinkedIn and all this thing. So LinkedIn पे आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा मैटर करती है. इनफैक्ट आई हैव अ फ्रेंड whose resume got rejected but he got a call from Amazon just because of his LinkedIn profile. तो आपकी LinkedIn प्रोफाइल एक्चुअली सारे प्लेटफॉर्म से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिज्यूमे के बाद आपकी LinkedIn प्रोफाइल आती है. सो डू अपडेट दैट प्रोफाइल रेगुलरली. देन कम्स टेक्निकल. ओके, सो टेक्निकल प्रोफाइल, इसमें मेरा मत एक्चुअली बिफोर आई एक्सप्लेन यू, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट ओपन सोर्स? ओके, कैन एनीवन टेल मी व्हाट्स ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज? एग्जैक्टली सारी बहुत सही. ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज वो होती हैं जिसमें अपना कोड सबके सामने रख देते हैं और फिर वो आपकी कोड पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. दे विल हेल्प यू आउट इन फिक्सिंग सम इश्यूज, दे विल पुट सम फीचर्स. सो ओपन सोर्स होना बहुत अच्छी बात है. आजकल ये बिल्कुल इन है, हर प्रोजेक्ट ओपन सोर्स हो रहा है. सो बट टेक्निकल प्रोफाइल, आई मीन यू शुड बी अवेलेबल on the platforms in which your recruiter will search, जैसे कि GitHub. Anyone heard about GitHub? No one. Okay. So GitHub क्या है? अगर आप एक प्रोजेक्ट लेते हैं, 3 से 4 लोग उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. अब 4 लोगों ने अपना कोड कमिट करा. एक ने लिखा a equals to a+1, बाकी सबने a+1, a+1, एक ने लिख दिया a+2. अब जब उन लोगों ने सबने अपना कोड कंबाइन करा तब प्रॉब्लम होगी. GitHub एक वो प्लेटफॉर्म है जो आपकी वर्जनिंग कंट्रोल में हेल्प करता है. वर्जनिंग कंट्रोल माने आपका कोड, सारे सबके कोड्स चेक होंगे
जिसका कोड कॉन्फ्लिक्ट करेगा सबको वो बताएगा कि किसने कौन सा कोड कब लिखा। आपको पता लग जाएगा कि मेरा कोड इससे डिफर कर रहा है, एंड देन यू बोथ गाइस कैन डिसाइड किसका कोड सही है, वो अपना कोड कमिट कर देगा। सो एक्चुअली बहुत सही प्लेटफॉर्म है, और whole world is actually on GitHub. Facebook, Google, Microsoft, name any company, they must have their project working on GitHub. GitHub क्या है आपको ने बताया, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अब वो अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है, यानी आप में से अभी कोई भी अगर घर जाता है अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करता है, देन ही कैन क्रिएट योर अकाउंट ऑन GitHub. बट द कैच हियर इज दैट योर प्रोजेक्ट शुड बी ओपन सोर्स। आप अपना प्रोजेक्ट सिंपल एक सम ऑफ 2 नंबर्स GitHub पे होस्ट कर सकते हैं, बट यू शुड बी एबल टू शो योर कोड। आपका कोड पूरी पब्लिक में सबको व्यू होगा। इस चीज का बहुत सारे रिक्रूटर्स फायदा उठाते हैं। अभी आप घर गए, आपने अपना कोई भी जो आपने सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में जो भी प्रोजेक्ट करा है आपने GitHub पे डाला, तो रिक्रूटर्स वहां से देख पाएंगे कि एक्चुअली बंदा तो ओपन सोर्स में इंटरेस्टेड है, ही इज पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजीज। सो इट्स वेरी गुड पॉइंट, आपको GitHub में प्रोजेक्ट्स डालना चाहिए। बट इसके एक नेगेटिव इफेक्ट भी है कि आपका सारा सोर्स कोड उनको विजिबल होगा। आपने इंडेंटेशन कैसे करी है, कमेंटिंग अच्छे से करी है कि नहीं करी, वेरिएबल्स के नाम अच्छे से दिए नहीं दिए, फंक्शन सिग्नेचर्स अच्छे से हैं कि नहीं है, तो ये छोटी छोटी चीजें सबके सब वहां पे नोट करेंगे। एंड देन हो सकता है अगर उनको आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी है तो फर्स्ट फ्यू राउंड्स ऑफ इंटरव्यू यू डोंट इवन टू नीड टू टेक दोस राउंड्स। जैसे जब मेरा Amazon का इंटरव्यू था, सो जस्ट दैट गाय वेंट ऑन माय GitHub प्रोफाइल, माय LinkedIn प्रोफाइल, ही डिडंट हैव माय रिज्यूमे, ही कॉल्ड मी फॉर अ थर्ड राउंड। मेरे को कोई स्क्रीनिंग नहीं देनी पड़ी, मेरा कोई रिटन टेस्ट नहीं हुआ, एंड आई गॉट अ कॉल फॉर डायरेक्टली थर्ड राउंड जस्ट बिकॉज ऑफ माय GitHub एंड LinkedIn प्रोफाइल। सो डू मेंटेन योर प्रोफाइल देयर। एक्चुअली ओपन सोर्स इतनी बड़ी चीज है कि अगर आप किस भी कॉलेज से हैं, आपका वो सब कुछ ओवरशैडो कर देता है। आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम करा नहीं करा, अगर बट आपने अगर ओपन सोर्स पे काम करा, देन योर प्रोफाइल विल बी प्रायोरिटाइज्ड एज कंपेयर टू द पर्सन हु हैज वर्क फ्रॉम हु इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT। सो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम करना इज अ वेरी 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 बिग थिंग। एंड देन कम्स एक्टिवनेस। एक्टिवनेस क्या होती है? आपने कितना आप करंट ट्रेंड सेटिंग टेक्नोलॉजीज को लेके एक्टिव हैं? अच्छा, आप में से किसको एजेक्स के बारे में पता है? एजेक्स एनीवन? ओके, बहुत कॉमन है एक्चुअली। 2005 टू इनफैक्ट 1998 में माइक्रोसॉफ्ट ने बोला था, बट उन्होंने बंद कर दी। फिर 2005 में गूगल इंट्रोड्यूस करा, उन्होंने चालू करी। बाय एक्टिवनेस पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा मतलब है कि आपको जो करंट सेटिंग टेक्नोलॉजीज है उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज अभी चल रही हैं मार्केट में। Even if you don't worked on them, you don't have a project on them, a know-how of these technologies will be good. You should know at least what is Ajax, what is Git, what is multi-tier architecture. At least just know what these things are, so that if you get through some rounds, if you clear the first few rounds, then in the last round, managerial round, they do ask what your technology interests are. In that you can put these points. I'm sir, I'm interested. I know these technologies. At least I would like to work on them. So this shows you're passionate. You want to work on them. तो मैं आपको कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में बताऊंगा एटलीस्ट, ताकि आपको नो हाउ हो जाए। जैसे कि AJAX बहुत कॉमन, हर कंपनी अगर उस कंपनी की वेबसाइट है, दैट मींस दैट कंपनी मस्ट हैव वर्कड ऑन AJAX। AJAX क्या है? आपका एक पेज है, अगर आपको उस पेज में से जैसे आपका किसी ने ESPN क्रिकेट इन्फो खोली कभी वेबसाइट, याहू क्रिकेट खोली, ओके, T20 चलो तो ऑब्वियसली खोली होगी आई गेस। तो उसमें क्या होता है कि आपके सिर्फ स्कोर अपडेट होते हैं, पेज समटाइम्स रिफ्रेश नहीं होता, यू नोटिस। तो फिर भी आपका स्कोर अपडेट हो जाता है। कैसे? आपके सामने आपका वेब पेज है, पीछे से वेब सर्विस जाती है, सिर्फ वो वेब सर्विस कहती है कि मुझे नया स्कोर बताओ। हर 15 सेकंड में वेब सर्विस जाएगी, स्कोर आपके पास फेच करेगी डेटाबेस से, आपको अपडेट कर देगी वो सेक्शन। पूरा पेज आपका रिलोड नहीं हुआ, तो उससे हमें कितना फायदा हुआ? हमारा पेज रिलोड नहीं हुआ, हमारा बहुत सारे केबी ट्रांसफर बच गया, हमारी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा बची, बहुत फास्ट प्रोसेसिंग हो गई। तो AJAX बहुत ज्यादा यूजफुल है। आपका गूगल सर्च इंजन, आप लिखते हो सोनिया गांधी, आगे वो खुद ही डाल देता है क्या है सोनिया गांधी, आप लिखते हो राहुल गांधी, खुद डाल देता है, तो वो डेटाबेस से फेच करते हैं और आपके सामने ऑप्शंस लाकर रख देता है। सो दिस ऑल इज AJAX। मल्टी-टायर आर्किटेक्चर, आई वोंट गो इनटू डिटेल्स, बट आपको जिसमें बता देता हूं कि है क्या। एक वेबसाइट बहुत सारे लेवल से बनती है। एक लेवल होता है जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है, एक लेवल होता है जो डेटाबेस और व्यू यानी HTML पेज के बीच का जो लेवल होता है वो होता है। तो एक वेबसाइट बहुत सारे टायर से बनती है। हमने क्यों डिवाइड करा? ताकि गलती से भी अगर हमारी वेबसाइट हैक हो जाए तो किसी को डेटाबेस, हमारे व्यू सबका एक्सेस ना मिले। अगर उसको मिले भी तो एक पार्ट का मिले, बाकी 2 पार्ट्स हमारे पास सेम रहे, सेफ रहे, हम किसी को दे ना पाएंगे।
तो हम एक वेबसाइट का आर्किटेक्चर 3 लेवल्स में डिवाइड कर देना, इसको कहते हैं मल्टी लेवल आर्किटेक्चर। गिट मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और ऐसे ही आप नेट पे जाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन से आजकल करंट ट्रेंड सेटिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं विकी पे। सो इन शॉर्ट, प्रोफाइल बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रिज्यूमे, देन कम्स योर सोशल प्रोफाइल, योर लिंक्डइन प्रोफाइल, देन योर गिटहब प्रोफाइल, एंड देन व्हाट टेक्नोलॉजीज यू नो। ऑल दिस कंस्टिट्यूट्स योर प्रोफाइल बिल्डिंग। ओके, सो आई टोल्ड यू अबाउट रिज्यूमे टिप्स। रिज्यूमे टिप्स बहुत सारी हैं, हर एक बंदा अपनी रिज्यूमे टिप्स खुद देता है। सो I would just give you a brief कि a very common set of resume tips I collected, so I will give you on that. Hello? Okay. So the first point is I told you that it will take just 15 to 30 seconds एक resume screener को आपका resume select और reject करने में सिर्फ 15 से 30 seconds लगते हैं. Okay? So आपको क्या करना है कि वो resume select हो जाए. You should make that resume one page, a one page resume. That's must. And in this whole presentation, I'm targeting category A and top level category B companies, the companies which provide salary package of 8 plus or 7 plus. So मैं उन सबके लिए आपको टिप्स दे रहा हूँ, ये रिज्यूमे टिप्स उन्हीं के लिए। पहली बात, आपका रिज्यूमे जो है वो एक पेज का होना चाहिए। अगर आपका रिज्यूमे एक पेज से ज्यादा no one will turn back and see what contents you have written. In fact, they will just read the first line and last line. That's it. आप उसमें हॉबीज मेंशन कर रहे हैं, स्ट्रेंथ्स वीकनेस मेंशन कर रहे हैं, they just don't care about it. Just mention the most important information. If you mention these things, they will dilute the real part. So be precise, highlight the word. In fact, उन्हें पूरी लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई प्रोजेक्ट लिख रहे हैं, नेक्स्ट कुछ वर्ड्स ऐसे हाईलाइट करिए कि आप उनको पूरी लाइन ना पढ़नी पड़े। They should get what you have done in the project. To the point रहिए and figures show करिए। By this I mean, अगर किसी ने प्रोजेक्ट करा है कि मैंने WinZip का क्लोन बनाया है, मैंने कंप्रेशन टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट करी हैं, तो आपको ये मेंशन करना चाहिए कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कितना कंप्रेस करता है। यू जस्ट डोंट मेंशन आई क्रिएटेड अ सॉफ्टवेयर दैट कंप्रेसेस दिस फाइल्स। यू शुड राइट आई क्रिएटेड अ सॉफ्टवेयर दैट कंप्रेसेस दीज फाइल्स बाय दिस मच अमाउंट। ओके, सो अगर आप फिगर्स मेंशन नहीं करेंगे तो दे वोंट कैच द आईज ऑफ रिज्यूमे स्क्रीनर। फॉर प्रोजेक्ट्स, अगर किसी ने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट्स एक्चुअली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आई वुड लाइक टू से आपको करने चाहिए। आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, और उनमें से सिर्फ टॉप लेवल प्रोजेक्ट्स आपको डालने चाहिए जिसके आप आंसर इंटरव्यू में अच्छे से कर पाओ। सो प्रोजेक्ट्स भी मेंशन करें, बी टू द पॉइंट, जस्ट मेंशन योर डिटेल्स, व्हाट टेक्नोलॉजीज यू हैव यूज्ड, योर ड्यूरेशन एंड व्हाट एग्जैक्टली यू डिड। If the screener is interested, if the interviewer is interested, they will definitely ask you the details and then mention those things. Languages and technologies. आप लोगों बहुत से लोगों को C++ पता है? किसने C++ पे काम करा है? ग्रेट। C# पे? वाह, C# का नंबर C++ से ज्यादा। ओके, और Java पे? ग्रेट। सो whenever you mention I've worked on C++, Java, C#, it doesn't convey how much you know about these languages. You should mention I'm proficient in C++, I'm a pro level in Java, I'm a beginner in C#. So do mention these words, what exactly and how much do you know. So whole point in this resume tip is that you should be as precise, technical, and highlight those things which are actually important, and just don't mention the unnecessary things, hobbies and all which I told you. Just don't mention those things. In fact, don't go into project details also, they will dilute your real information. And then अब एक जॉब के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। इनफैक्ट गूगल फॉर वन जॉब दे 1000 कैंडिडेट्स एंड दे सिलेक्ट 10 आउट ऑफ देम, सो इट्स 1:100 रेशो। सो आपका रिज्यूमे कैसे स्टैंड आउट कर सकता है बाकी सबसे? आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, किसी को नहीं पता है, बहुत कम लोगों को पता है चीज, कि रिज्यूमे के अंदर हम अपने QR कोड्स मेंशन कर सकते हैं। कौन कौन एंड्रॉइड यूज करते हैं यहाँ पे? ओके, सो एंड्रॉइड में आपने फीचर देखा होगा कि अगर आप स्कैन करते हैं QR कोड को तो रीडायरेक्ट हो जाता है, राइट? तो जैसे स्नैपडील, फेसबुक, बहुत सारी कंपनीज यूज कर रही हैं आजकल, तो आप रिज्यूमे में वो चीज यूज कर सकते हैं। बहुत छोटा सेक्शन लेगा वो, अगर प्रोजेक्ट डिटेल्स या सब कुछ डिटेल्स आप एक वेब पेज में डाल के रख दीजिए, अपने रिज्यूमे में सिर्फ एक हाइपरलिंक या वो QR कोड मेंशन कर दीजिए, दैट्स सफिशिएंट। किसी को भी डिटेल्स देखने होंगे, यू विल जस्ट ब्राउज थ्रू देम एंड इट विल मेक योर रिज्यूमे स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स। So just this one is really very important. Just a second. Okay.
Yes. So technical interview. Can I have bottom? Okay. So technical interview. Technical interview is a big fish. आपका रिज्यूमे बन गया. You know about the companies. You know उनकी ओपनिंग्स कब है, क्या वो सैलरी ऑफर करनी है, आपको सब कुछ आपके दिमाग में क्लियर है. बट नाउ कम्स द टेक्निकल इंटरव्यू थिंग. आप कैसे उस कंपनी का टेक्निकल इंटरव्यू क्रैक करेंगे? बेसिकली जब आपने इंफॉर्मेशन शुरू में कलेक्ट करी, वो मोर देन सफिशिएंट है आपको बताने के लिए कि वो क्या आपसे पूछने वाले हैं. एग्जाम्पल, अगर आप फेसबुक को एम कर रहे हैं, ठीक है, तो फेसबुक विल डेफिनेटली आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राफ्स. एंड दिस ऑल्सो मैटर्स. एक्चुअली बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है. पहले मैं आपको चीजें लिस्ट आउट करता हूं कि किस पे टेक्निकल क्वेश्चन डिपेंड करता है. पहला कि आप किस कंपनी पे अप्लाई कर रहे हैं. सेकंड, द पोजीशन फॉर विच यू आर अप्लाइंग. थर्ड, व्हाट यू हैव पुट इन योर रिज्यूमे. फोर्थ, योर इंटरव्यू डोमेन. सो आप ये सारी चीजें एक इंटरव्यू से पहले खुद कलेक्ट कर सकते हैं. आपको किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं है, बट बहुत ज्यादा उसके लिए सर्चिंग की जरूरत है एक्चुअली. बट यू कैन कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन. अगर आप फेसबुक के लिए जैसे अप्लाई करें, मैंने आपको बताया वो ग्राफ से बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे. क्यों? फेसबुक में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. आपके सारे फ्रेंड्स कैसे कनेक्टेड हैं? ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर से. सो यू शुड नो BFS, DFS एटलीस्ट बिफोर गेटिंग टू द स्क्रीनिंग राउंड. अगर आप गूगल के लिए एम कर रहे हैं तो वो स्ट्रिंग प्रोसेसिंग पे पूछेंगे. सो इज Amazon. दे विल डेफिनेटली, नो मैटर व्हाट, आप किसी भी पोजीशन के अप्लाई कर रहे हैं. इनफैक्ट अगर आप मैनेजरियल रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन कंपनीज में, दे विल आस्क यू हाउ विल यू प्रोसेस स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग प्रोसेसिंग बहुत जरूरी है इन कंपनीज के लिए. ऐसे ही हैशिंग, ये सारी कंपनीज में कॉमन है. हैशिंग, हर कंपनी आजकल हैशिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती ही पूछती है, नो मैटर व्हाट आप किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करें. सो एक्चुअली डिपेंड्स ऑन कंपनी, बट देयर आर क्वेश्चंस दैट दे वोंट आस्क. यू कैन स्किप दोस क्वेश्चन. लाइक फेसबुक, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो आप, दे वोंट आस्क यू अबाउट सिस्टम डिजाइन, कि आप फेसबुक को कैसे डिजाइन करेंगे. दे विल आस्क दैट क्वेश्चन फ्रॉम एडमिन ओनली, फॉर एडमिन पोजीशंस ओनली. Just a second. Thanks. So my point is, आप अपना इंटरव्यू खुद ड्राइव कर सकते हैं. You can get to know your questions and it's completely on you. You don't need to worry about वो कंपनीज आपसे ये पूछने वाली हैं. सेकंड, आपको बता दिया जाता है आजकल कंपनीज में कि आपका इंटरव्यू ये पर्सन कंडक्ट करेंगे. So just go to the LinkedIn profile of that person, see what projects he have done, what technologies he belongs to, and you'll be able to get the question domain at least. अगर किसी ने सिस्टम डिजाइन पे काम करे, विल डेफिनेटली आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट. अगर किसी ने वेब आर्किटेक्चर पे काम करे, तुमसे वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछेगा. सो यू कैन गेट टू नो द आइडिया. देन कम्स द मास्टर एटलीस्ट वन लैंग्वेज. बाय दिस आई मीन बहुत सारे लैंग्वेज, जैसे मैंने भी आपसे पूछा, किसी को C++ पसंद है, किसी को C# पसंद है, किसी को जावा, किसी ने इन तीनों लैंग्वेजेस पे काम करा है. बट दैट डजंट रियली काउंट. अगर किसी ने एक लैंग्वेज पूरी अच्छे से करी है तो वो सारे इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर कर सकता है, बजाय उसके जिसने बहुत सारी लैंग्वेजेस करी है थोड़ी थोड़ी करी है. सो मेक इट अ पॉइंट, मास्टर एटलीस्ट वन लैंग्वेज. किसी ने अगर C++ पढ़ी है तो उसके लिए स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी पढ़ना बहुत जरूरी है. ही वोंट बी एबल टू क्रैक इंटरव्यूज जस्ट बाय पुटिंग, if you won't use vectors, he will put arrays, and sorting he will again write a function. So बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा. आप इंटरव्यू के लिए 1 घंटा वेट नहीं करा सकते. आप उनसे ये बोल नहीं सकते कि आप वेट करिए. तो आप स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी यूज करिए C++ के लिए. ऐसे ही C# के लिए आपको उनकी पता होना चाहिए कौन सी क्लासेस हैं जो आपको, जहां से वो सीरीज डिराइव हुई. जैसे हैशिंग के लिए C# में डायरेक्टली हैश एक क्लास है, सो यू कैन जस्ट यूज दोस क्लासेस फंक्शंस. सिमिलरली फॉर जावा. सो जस्ट मास्टर एट लीस्ट वन लैंग्वेज. Know the process. By this I mean, if in case, God forbids, your interview round doesn't go well, एक अगर इंटरव्यू राउंड खराब हो गया, that doesn't mean that the interviewer will share your interview experience with the other interviewers. It completely depends on company. Microsoft, Amazon, Google, they follow a policy that if you have an interview, that the interviewer won't discuss his experience, your feedback with any interviewer till the last round. So अगर आपका इंटरव्यू खराब हुआ है, then you have a pretty good chance to get back in the next interview rounds. So it actually depends on company. So that's why I told you, you should know the process. How much time will they take in an interview round? कितने तरह के क्वेश्चन पूछते हैं. अगर आपने क्वेश्चन जल्दी आंसर करी तो उनका रिएक्शन क्या दो. Will they ask you the question based on this earlier question, or they formulate a new question after a successful answer? So just know the process before going to interview. Then comes क्वेश्चंस. मैंने अभी आपसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको बताऊंगा अभी. बट जब भी कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, टिल यू आर नॉट क्लियर अबाउट द क्वेश्चन, you should cross question about that question. That means
अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, अगर आपको नहीं पता उसका आंसर, एटलीस्ट बाय सम टाइम बाय आस्किंग अ क्रॉस क्वेश्चन, सर इफ दिस इज द इनपुट सेट, विल दिस बी द आंसर? आपका मतलब ये है, मतलब ये केसेस होंगे, जस्ट क्रॉस क्वेश्चन. इससे क्या होगा, एक तो आपको टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए, सेकंड चीज आपको पूरा क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू राइट. ओके, सो ऑलवेज बी श्योर अबाउट व्हाट द क्वेश्चन एग्जैक्टली इज. कंफर्म विद द टेस्ट केसेस. देन कम्स इंडेंटेशन. आई टोल्ड यू, हम जब एक्लिप्स या विजुअल स्टूडियो में प्रोग्राम करते हैं तो वहां पे ऑलरेडी इंडेंटेट हो जाता है. हाँ, बट जब हम पेन पेपर पे प्रोग्राम करते हैं, वी जस्ट डोंट बॉदर अबाउट दिस थिंग. In that case, you should practice before interview by writing the code on paper and then execute the same code on interview so that you will get to know what exactly mistakes you are making. आप एक hash include iostream.h अगर ये नहीं लिखते, it doesn't matter actually. But अगर आप indentate नहीं करते, उनको एक proper functions को proper signature नहीं देते, तो आपका interviewer का impression अच्छा नहीं पड़ता. Remember one thing, interviewer is your advocate. He will fight for you with the hiring manager. अगर आपका interview बहुत सारे राउंड्स आपके अच्छे नहीं गए, पर आपने एक राउंड बहुत तोड़ सा दे दिया, तो आपके लिए फाइट करेगा दैट आई नीड दिस गाय. सो ऑलवेज हैव अ गुड इंप्रेशन ऑन इंटरव्यूअर, एटलीस्ट अ सिंगल वन. सो प्रॉपर इंडेंटेशन एंड नेमिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. देन कम्स लाइक ओके, सो अगर हम इंटरव्यू दे रहे हैं और बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट विल डू? विल कीप ऑन राइटिंग थिंग्स कि कैसे करेंगे. वी डोंट इवन लुक एट हिज आईज, वी डोंट डू एनीथिंग, वी जस्ट become silent and just start coding. So this actually creates a bad impression. Even if you don't know the solution now, just tell that guy that what you're thinking. Think out loud. If you know the brute force approach, then just tell him what exactly you're thinking. बहुत कुछ भी आपके दिमाग में है, just speak out it, so that he will get to know at least you're solving the question. What's your thought process? And even if that thing doesn't work, you don't know the answer, ask politely the interviewer, can you give me the